رات کے دوسرے پہر سگریٹ کی طلب محسوس کر کے وہ باہر نکل آیا، مگر یہاں سگریٹ پینا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ تبھی وہ پیچھے کی طرف آ گیا۔ سکون سے سگریٹ پیتے ہوئے وہ واک کر رہا تھا کہ اچانک چیخوں کی آواز پر وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سگریٹ زمین پر پھینکی اور عدیل کے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں صرف عدیل کا کمرہ ہے، جبکہ اس کے آگے افشین کا پورشن تھا۔ وہ جیسے ہی اس طرف آیا، کوئی بھاگتا ہوا اس کے سینے سے لگا تھا۔ پلیز مجھے بچا لیں، پلیز پلیز، یہ میرے بال کاٹ دیں گے، مجھے بچا لیں۔ بری طرح سے سکتے ہوئے وہ لڑکی اس سے مدد طلب کر رہی تھی، جبکہ عدیل ہاتھ میں کینچی اور چھری پکڑے پیچھے آ رہا تھا۔ ادھر آ تو، ادھر آ، وہ اپنی توتلی زبان میں بولا تھا۔ سالار یہ منظر دیکھ کر حیران تھا۔ یہ لڑکی اس پاگل کے پاس کہاں سے آئی؟ لڑکی عدیل کو دیکھ کر جلدی سے سالار کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ عدیل چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ دور ہٹو، وہ ایک دم غصے سے بولا تھا۔ عدیل سہم کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں بھی مار دوں گا، وہ بولا۔ اچھا؟ سالار ایک دم اس کی جانب بڑھا۔ عدیل ایک قدم دور ہوا، جبکہ اپنی پشت پر وہ مدھم سسکیاں سن سکتا تھا اب بھی۔ یو شٹ اپ، وہ ایک دم چڑ کر پلٹا۔ یو شٹ اپ، وہ ایک دم چڑ کر پلٹا تھا اور غصے سے بولا تو زمل کی آواز کو بریک لگی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ کیا کر رہی ہو تم اس پاگل کے کمرے میں؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ زمل نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ عدیل نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اوف! سالار نے تپ کر اس کی چیخو پکار سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیتا، افشین دوڑتی ہوئی ان تک پہنچی۔ ہائے میرا بچہ! انہوں نے روتے ہوئے عدیل کو گلے سے لگایا اور زمل کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا، جو سالار کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک دم افشین کو دیکھ کر اس کا دم خشک ہوا اور وہ اس کے پیچھے سے نکلی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو سالار؟ افشین نے سالار سے غصے سے پوچھا۔ آپ اس پاگل کو پاگل خانے کیوں نہیں پہنچاتی؟ سالار بیٹا ہے میرا، افشین یکدم تپی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اور یہ لڑکی کون تھی اس کے کمرے میں، جانتی ہیں آپ؟ وہ چھری سے اس کے بال کاٹنے والا تھا، سالار بولا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں، بیوی ہے وہ اس کی، جو مرضی کرے وہ اس کے ساتھ، افشین نے غصے سے کہا، جبکہ سالار تو ہونک ہی رہ گیا۔ اور تم اندر جاؤ عدیل کو لے کر، زمل کو غصے سے دیکھ کر افشین بولی تھی۔ ایک منٹ، سالار نے بنا لحاظ رکھے زمل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زمل نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ پہلی بار اس گھر کے کسی فرد کو دیکھا تھا اس نے، ورنہ جس اذیت میں وہ تھی کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس کی بیوی ہو؟ وہ بے حد حیران تھا اور اسے پوچھنے لگا۔ سالار چھوڑو اس کا ہاتھ، افشین غصے سے تپی تھی، جبکہ زمل نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا۔ سالار کو دھچکا لگا تھا۔ عدیل نے اچانک جھپٹ کر اس کے بال جکڑ لیے۔ سالار ایک دم اس کی جانب بڑھتا کہ افشین بیچ میں حائل ہو گئی۔ خرید کر لائی ہوں میں اس لڑکی کو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ لڑکی، افشین آنکھیں نکال کر بولی۔ مگر چچی وہ انسان ہے، وہ تل ملایا۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، دوبارہ مت آنا اس طرف، وہ بھڑکی، جبکہ سالار کی نظریں عدیل پر تھیں، جبکہ وہ لڑکی چپ تھی۔ عدیل اس کے بال کھینچ رہا تھا، لمبے لہراتے بال۔ سالار نے مٹھیاں بھینچ لی تھی غصے سے۔ افشین بھی وہاں سے چلی گئی، البتہ سالار اب بھی اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے پلٹا اور اپنے گھر کی طرف آیا۔ تبھی زین بھی اندر داخل ہوا۔ سالار کی توجہ اس کے ڈگمگائے قدموں پر نہیں گئی، کیونکہ وہ بے حد حیرانگی اور شوق کی کیفیت میں تھا۔ وہ سیدھا مما کے کمرے میں گیا، جبکہ زین جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ آ جاؤ میرے چاند، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے جب مدیحہ نے کہا، سوال کرنا ہے ایک۔ وہ سنجیدگی سے بولا، بیٹے تمیز لحاظ بھی کوئی شے ہے، آؤ بیٹھو آرام سے بات کرو، مرتضیٰ نے ٹوکا اور سالار بیٹھ گیا چپ چاپ۔ مما عدیل کی شادی کب ہوئی؟ وہ بھی ایک باشعور لڑکی سے؟ وہ حیرانگی کی انتہا پر تھا۔ جب محترم آپ ایک ماہ گھر سے دور رہے تھے تب ہوئی تھی ان کی شادی، مرتضیٰ نے طنز کیا۔ مگر اس کی شادی کیسے کرا دیا آپ لوگوں نے؟ سالار بھڑکا۔ یہ افشین کی ضد تھی بیٹا، ہم نے تو اس لڑکی کو آج تک دیکھا بھی نہیں، مدیحہ افسوس سے بولی۔ سالار نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اپنی۔ تبھی کبیر بھی کمرے میں آیا۔ مدیحہ ذرا شرمندہ سی ہو گئی، جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے۔ کبیر اندر آیا اور مدیحہ کی طرف دیکھے بنا وہ مرتضیٰ کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے بتایا نہیں بابا، سمیر کیوں آیا تھا؟ وہ خبیث کیا کرنے آیا تھا؟ سالار ایک دم سے بولا۔ غصہ تو اسے عدیل پر ہی آ رہا تھا بہت، اور سمیر کا نام سن کر وہ اور بھی بھڑک اٹھا تھا۔
तुम दोनों के साथ मसला नहीं समझ आता मुझे। अभी वो तीसरा पहुंच जाएगा, बदबख्त बाप से बैर डाले बैठा है। वो गुस्से से बोले तो वो सब चुप हो गए। प्रीशे का रिश्ता लेकर आए हैं वो दोनों। मुझे और शहाब को तो समीर बहुत पसंद है। सिकंदर ने भी हाँ कर दी है। वो बोले तो कबीर अपनी मुट्ठियां बंद कर चुका था। जब से चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि सालार एकदम से उठ खड़ा हुआ। ये क्या बात हुई? आप ऐसा कैसे फैसला कर सकते हैं? वो चिल्लाया था। निकलो कमरे से। जब तुम में बाप से बात करने की तमीज़ नहीं तो सामने मत आया करो, वो सख्ती से बोले। मदीहा खामोश खड़ी थी। सालार गुस्से से बाहर निकल गया। मजीद रुकता तो वो वाकई लिहाज भूल जाता। अलबत्ता कबीर ने बाप की तरफ देखा। ऐसा नहीं होगा बाबा, वो लड़का हमारी प्रीशे के काबिल नहीं है। वो तहम्मुल से बोला। हम फैसला कर चुके हैं, हमें कोई बुराई नहीं लगी उसमें। मुर्तज़ा बोले। मैं शहाब चाचू से बात खुद ही कर लूँगा, उसने कहा और गुस्से से वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। कल रात से ही वो काफ़ी डिस्टर्ब था, मिजाज ख़राब और बरहम से थे। वो नाश्ते के लिए नीचे आया और बाबा को अपने भाइयों समेत लाउंज में देखकर उसने अपनी आंखें साफ की। कपड़े वही हाल था, वो नाइट ड्रेस में था। पाँव पटक कर वो दोबारा कमरे में चला गया। बार बार अदील और उस लड़की का ख्याल उसके जहन में आ रहा था। किस कदर चीप है ना अफशीन चाची, उसने नखुवत से सोचा। बिस्तर पर औंधा लेटा वो मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा था। तभी आफान का फ़ोन आया जिसे उसने पिक किया। साले तो आ गया और मुझे बताया भी नहीं, उसने बिना हाल अहवाल के शिकवा किया था। मेरे भाई, तेरी मोहब्बत की कब्र पर मीनार बन रहा है, फ़िलहाल अपनी परवाह कर। वो सर झटक कर बोला। क्या मतलब? आफान समझा नहीं। पता नहीं यार, बाबा के साथ क्या मसला है। अब इंसान बूढ़ा हो गया है तो मान ही ले कि हाँ मैं बूढ़ा हूँ। नहीं, सारे उल्टे सीधे फैसले खुद ही करने हैं। वो बरहम लगा था। तमीज़ से भाई, सुन लिया ना किसी ने, लग पता जाएगा तुझे। अफान हंसा था। प्रीशे का रिश्ता हो रहा है समीर नामी शख्स से। सालार ने उसे हकीकत से आगाह किया। क्या? आफान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तमाम ऑफिस वर्कर्स उसको हैरत से देखने लगे। क्या बकवास है ये, वो बोला और बाहर निकल गया। मेरे बाप का फैसला है ये, सालार ने सर झटका। और तुम कुछ नहीं बोले? तुम जानते हो कि वो रुक गया था। सालार जानता था कि वो परीशे के लिए फीलिंग्स रखता है, आज से नहीं काफ़ी अरसे से। कबीर के हाथ में है फ़िलहाल ये मामला, देखते हैं कि वो क्या करता है। बहरहाल मेरा एक मशवरा है, बाबा लाजमी प्रीशे से बात करेंगे, तुम अपनी फीलिंग से आगाह कर दो ताकि वो सीधा इनकार कर दे। सालार बोला, जबकि आफान खामोश था। तुम्हें लगता है वो मेरे जज्बात को समझ जाएगी? ऑफ कोर्स मेरा स्टेटस तुम लोगों जितना नहीं है। अफान संजीदा था। बकवास कम करो, किसी स्टेटस का दिल की फीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर मोहब्बत पैसों में तोली जाती तो बन जाती बड़ी बड़ी कहानियाँ, हीर रांझा, लैला मजनू, फला फला। उसने झड़क दिया था उसे, जबकि आफान ने फ़ोन बंद कर दिया। सालार ने सेल फोन साइड पर फेंका था। आज संडे था और सभी घर पर थे। वो उठकर अपने कमरे की ग्लास वॉल के पास आ खड़ा हुआ था, जहाँ से पूरे घर का नज़ारा साफ दिखाई देता था। तीसरी मंजिल पर सिर्फ उसी का पोर्शन था जो हर किस्म की आराइश और लग्जरी से आरास्ता था। सिगरेट जलाकर लबों से लगाने के बाद उसने ग्लास वॉल पर से पर्दे हटाए थे। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। जगह जगह सफ़ेद बादलों के मरगूले हल्के नीले आसमान की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, जबकि दरख्त झूमते हुए बता रहे थे कि हवा भी खुशगवार है। सिगरेट का धुआं शीशे को धुंधला करने लगा तो उसने अपने हाथ से उस धुंधलाहट को साफ किया और निगाह बिल्कुल सामने जा ठहरी। वो अपने बालों को पकड़े रो रही थी बैठकर। सालार के मुंह से सिगरेट छुटी और फर्श पर जा गिरी। कल रात जिन बालों की खूबसूरती पर वो पल भर को ठिठका था, आज जगह जगह से कटे हुए थे। उल्टे सीधे बालों को देखकर उसका दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ा गया था। खामोश साकित नज़रों से उसने ये नज़ारा देखा। वो बेंच पर बैठी थी और मुसलसल रो रही थी। सालार ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। दांतों को सख्ती से दांतों पर जमा कर वो शीशे पर बेचैनी से हाथ रखता सामने देखने लगा, जबकि उस लड़की को जैसे किसी ने आवाज़ दी थी। आंसू साफ करके वो यूं अंदर भागी थी कि सालार ने ग्लास वॉल पर मुक्का दे मारा। इस बेहिसी पर उसका खून खौल उठा था। अगर ग्लास वॉल मजबूत ना होती तो ज़रूर टूट जाती। वो जल्दी से वहाँ से हटा और फ्रेश होने चला गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर ब्लैक कमीज शलवार में बाहर निकला। चेहरे पर सख्ती कम और उलझन ज़्यादा थी। उसका सेल फोन बजने लगा। उसने ब्लूटूथ अटैच की और उसके साथ पीए की आवाज़ उभरी। सर अकबर अंसारी, मूवी डायरेक्टर, आपसे मिलना चाहते हैं, उसने इन्फॉर्म किया था। ठीक है, सालार ने जवाब दिया। सर, मैं आपकी गाड़ी रेडी करवा चुका हूँ, 5 मिनट में आपको पिक करता हूँ। वो बोला तो उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दी। बाल बनाकर वो नीचे आ गया, जहाँ अब भी सब चाय का लुत्फ ले रहे थे। कहाँ जा रहे हो तुम?
मुर्तज़ा सबसे पहले बोले थे। कबीर भी उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकला जबकि आरिज मौजूद नहीं और जैन कल रात हुई वारदात के नशे में सुन बैठा था। अलबत्ता प्रीशे और अमल का टेप रिकॉर्डर चल रहा था जिस पर सब मुस्कुरा रहे थे। आयत भी आज बीच बीच में बोल रही थी, काम से जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। उसने जवाब दिया और जाने लगा। ये महीने बाद तुम्हारी शक्ल घर में नजर आई है, फिर से काम शुरू हो गए तुम्हारे? वो बोले तो सालार ने तप कर रुख बदला। तो क्या करूं, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं, काम धंधा छोड़ दूं? वो एकदम फुंकारा। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? मुर्तज़ा साहब हद तक एहसास से दहाड़े थे। एकदम चारों तरफ में सन्नाटा छा गया। सालार, कबीर की सख्त आवाज़ बीच में सुनाई दी। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। वो घूर कर उसे बोला था। तो इन्हें भी समझा दो ना, काम से ही जा रहा हूँ, हर चीज़ पर निगाह रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपने घर में भी निगाह डाल लें। क्या क्या तमाशा लगा हुआ है यहाँ पर। वो गुस्से से फुंकार रहा था। बदतहजीबी अक्सर वो कर जाया करता था मगर कभी ऐसा रवैया नहीं रखा था। सभी हैरानगी से उसको देख रहे थे कि उसे हुआ क्या है। मुर्तज़ा अपनी जगह से उठे और उस तक आए। आरिस भी शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। वो जेनी से बात कर रहा था जिसने उसको वीज़ा लग जाने की खुशखबरी दी थी। काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था मगर बाहर से सालार भैया की आवाज़ सुनकर वो बाहर निकल आया था। क्या तमाशा लगाया हुआ है मैंने इस घर में? वो सख्त नज़रों से उससे पूछ रहे थे। सालार ने बिना डरे अपना रुख उनकी जानिब कर लिया। आपको बहुत शौक है बाबा हर चीज़ में बैलेंस रखने का। कोई भी चीज़, भले वो औलाद ही क्यों ना हो, नुक्स ना हो उसमें। कहीं आपके 4 बेटे किसी बुरी सोहबत में ना पड़ जाएं, कहीं आपके भाई कुछ गलत ना कर दें। जब जिंदगी में इतनी मेंटेनेंस है तो कैसे आप उस पागल उल्लू के पट्टे अदील के साथ एक बाशऊर लड़की को बांध सकते हैं? वो धाड़ा था। अफशीन तो बेटे के लिए ये अल्फाज सुनकर तिल मिलाई। सिकंदर का बाजू झंझोर दिया था उन्होंने। बचपन से इसको मेरे बेटे से बैर है, मसला समझ नहीं आता कि इसके साथ है क्या। वो बीच में बोली जबकि मदीहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस करें भाभी, आपका ये बेटा इसे पागल कह कह कर ना मुझे तकलीफ देता है। जानती हूँ मैं, मेरी औलाद में नुक्स है, तो क्या मैं उसको खुश भी नहीं कर सकती? तो उसको खुश करने के लिए किसी के अरमानों का गला घोंटना ज़रूरी है? वो एकदम गुस्से से चिल्लाया था कि मुर्तज़ा का उस पर हाथ उठ गया। बस चुप, वो सख्ती से बोले। सालार उनकी जानिब सुर्ख चेहरे से देखने लगा जबकि कबीर एकदम बाप और उसके बीच में आया। सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। ऐसे शदीद रद्द अमल की किसी को उम्मीद नहीं थी। सालार बिना लिहाज के उन पर झपटा जबकि आरिस दौड़कर उस तक पहुंचा था। क्या कर रहे हैं भैया आप? उसने सालार के दोनों बाजू से जकड़ लिया था। बाप पर हाथ उठाएगा ये? छोड़ो इसे, मैं भी तो देखूं कि कैसे हाथ उठाता है। एक अनजान लड़की के लिए कैसे सामने तनेगा। वो चिल्लाए। बाबा क्या हो गया आपको? कबीर ने उनको दूर किया। मेरी एक बात सुने, जिसे तकलीफ है ना उसे पागल कहने से, तो वो कान खोल कर सुने कि वही पागल है और उस पागल को ठिकाने में खुद लगाऊंगा। उसकी वजह से हाथ उठाया है ना आपने मुझ पर, उससे जैसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सालार अपनी जुबान को लगाम दो बेटा। बेटा है वो मेरा, सिकंदर उंगली उठाकर बोले। सालार ने आरिस को झटका और वहां से निकलता चला गया। जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसके बाद उसका ये रिएक्शन यकीनी था। किसी तरह वो अपने खराब हुए बालों को जकड़ कर रो रही थी। किस तरह वो अपने खराब हुए बालों को जकड़ कर रो रही थी। उसको लग रहा था कि गुस्से से उसकी दिमाग की रगें ही ना फट जाएं। उसको लग रहा था कि कहीं गुस्से से उसके दिमाग की रगें ही ना फट जाएं। पीए ने आज पिए ने उसके आगे जूस का ग्लास किया और उसने थाम कर एक ही सांस में चढ़ा लिया। बियर दो मुझे, वो बोला तो पिए ने जल्दी से गाड़ी की डिग्गी से सामान निकाला और उसे पेश कर दिया। मुर्तज़ा साहब बेहद गुस्से में थे जबकि उन्होंने दोबारा सालार का घर में आना बंद कर दिया था कि अब वो दोबारा घर नहीं आएगा। कबीर बार बार उनको ठंडा करना चाह रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर और अफशीन ने एक और हंगामा मचाया हुआ था। सब लड़कियां सहमी हुई सी एक कमरे में बंद थीं जबकि जैन को अपनी ही फिक्र लगी हुई थी। पहली बार उसने शराब पी थी और अब तक वो अपने तवाज़ुन में नहीं था। तभी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसने अपने कमरे में गुजारने का सोचा। वो कमरे में लेटा लड़ाई के बारे में सोच रहा था। तभी एहतशाम की फ़ोन कॉल आई। उसने कॉल पिक की। क्या प्लान है ब्रो आज का? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, आज मैं घर से नहीं निकल सकता। बाबा घर पर हैं, आज संडे है ना, जैन ने अफसुर्दगी से कहा जबकि एक बार जो चस्का उसको लग गया था बार बार वहां जाने के लिए दिल उकसा रहा था उसे। ओ पागल, तू क्यों डरता है अपने बाप भाइयों से इतना? एहतशाम बोला। यार तुम नहीं जानते हमारे घर के माहौल को, जैन ने मासूमियत से कहा।
अच्छा तो फिर कुछ कर, आज रात मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। एहतशाम ने लालच दी जबकि जैन उठ बैठा। न्यू आई है वो? न्यू आई है क्या? वो बोला तो एहतशाम हंस पड़ा। हाँ भाई, उफ, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। उसने इर्द गिर्द देखा मगर सालार भैया घर पर नहीं है, वरना निकलना आसान हो जाता। जैन बोला, तू ऐसा कर, चुपके से घर से भाग कर आ जा बाहर, चुपके से भाग कर निकल जा, ऐसे कि किसी को शक ना हो कि तू कहाँ है। एहतशाम बोला तो जैन को वो बात कुछ मुनासिब लगी। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। वो मुस्कुराया और जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मम्मा बाबा के कमरे में कबीर भैया थे, सिकंदर चाचू थे और बाकी बड़े थे। आरिस भी वहीं था। उसने वक्त देखा, शाम होने में कुछ ही देर थी, किसी की तवज्जो उस पर नहीं जाएगी। थैंक यू भाई। उसने बिना देखे सालार का शुक्रिया अदा किया कि आज जब वो भागेगा तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा, तो ये सब भी सालार की वजह से ही होगा। जैसा वो हंगामा मचा कर गया था, वो जल्दी से दोबारा अपने कमरे में चला गया। आरिस बहुत देर बाद थक कर वहां से निकला। जानता था उसके बाप को अपनी जिद से कोई नहीं हटा सकता, तभी उसने वहां से उठना जरूरी समझा। कबीर ने कल ही उसे ऑर्डर्स दे दिए थे कि वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा और उसने हामी भी भर ली थी। 10-15 दिनों से वैसे भी वो यहाँ से फरार होने वाला था, मगर उसे पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसा उसे सिर्फ आयत दिला सकती थी। उसने पूरे घर पर निगाह दौड़ाई, वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने मैसेज सेंड किया, सालार भैया के पोर्शन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में मेरे पास पहुँच जाओ। मैसेज करके वो खुद तीसरी मंजिल की जानिब चल दिया। आयत ने मैसेज पढ़ा और पढ़ते ही जैसे उसे घबराहट होने लगी। प्रीशे ने उसकी जानिब देखा, आयत की भी निगाह उस पर गई और प्रीशे ने अमल को बाहर जाकर चाय का कप लाने का कहकर बहाने से निकाला और जबरदस्ती आयत से मोबाइल खींचकर उसने वो मैसेज रीड किया। इस आरिस को तो मैं छित्तर बड़े भैया से पढ़वाऊंगी। वो एकदम गुस्से से भड़की। प्लीज प्रीशे, मेरा सेल फोन वापस दो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो, कोई राज्य के कोढ़ मगज हो तुम भी। उसे तुमसे क्या कम पड़ गया? तुम अपने बारे में सोचो। खौफ आ रहा है मुझे कि इस हकीकत से जिस दिन पर्दा उठा, जिस दिन किसी को पता चल गया ना, तो क्या बनेगा? कहीं की नहीं रहोगी तुम, ऐसे ही जोगन बन के बैठी रहना फिर तुम इधर ही। वो गुस्से से बोली। प्रीशे, आयत मिनमिनाई। शट अप। प्रीशे ने उसको आंखें दिखाई। ये तुम्हारी बुजदिली ही है जो वो यहाँ तक पहुँच गया है और उसने इतनी बड़ी हरकत कर दी। उसे कोई शर्मिंदगी भी नहीं? और कैसे वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? वो चिल्ला रही थी। आयत की आंखें भीग गईं। वो गुस्सा हो गई तो वो सुर्ख आंखों से उसको देखते बोली, भाड़ में जाए। प्रीशे ने लापरवाही से कहा, तुम चाय के मजे लो, उस अफलातून को भी अंदाजा होना चाहिए कि तुम कोई गिरी पड़ी नहीं हो। जो तुम्हें दिन कहेगा तो तुम दिन कहोगी और रात कहेगा तो रात मान लोगी। वो गुर्राई थी, जबकि आयत को भी कुछ हौसला सा हुआ। प्रीशे के हाथ में दिया अपना सेल देखकर उसने गहरी सांस भरी और आंसू साफ किए। प्रीशे उसके हौसला पकड़ने पर वो खुश सी हुई थी और अमल भी उतनी देर में आ गई। अब तीनों डिस्कस कर रही थी कि सालार भैया ने ऐसा क्या देख लिया जो उस लड़की के लिए ऐसे तन कर खड़े हो गए, और उन्हें भी दर हकीकत देखना चाहिए। मगर अदील से डर लगता था, कैसे वो बर्दाश्त कर रही होगी उस अदील पागल को। प्रीशे बोली, बुरी बात ऐसे मत कहो, वो अल्लाह की तरफ से ऐसे हैं। हाँ तो चची को उस लड़की पर तो जुल्म नहीं करना चाहिए था ना, तुम समझते नहीं हो। असल जंग उस लड़की के साथ हुई है, ज्यादती हुई है उसके साथ। वो बोली तो सब मुत्तफिक हुए। मैं उस लड़की से मिलूंगी, देख लेना, तुम देख लेना। रात में चलेंगे अदील के पोर्शन की तरफ। प्रीशे ने जल्दी से कहा, पागल लड़की, अदील बहुत शोर करता है, चची को भिनक भी पड़ गई तो दलिया बना देंगी हमारा कि हम उनके बेटे का मजाक बना रहे हैं। अमल ने टोका। खैर है, देखा जाएगा, प्रीशे ने कहा, जबकि आयत का दिमाग बार बार आरिस की तरफ जा रहा था, जिसको कोशिश करके वो हटाना चाह रही थी।